السلام علیکم 51 نیوز کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل۔ خبروں کے سلسلے کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں نواز رسول حضرت امام حسین کا چلم مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں روایتی جلوس اور تعزیے برآمد کیے گئے۔ اس دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سیکیورٹی ہائی الرٹ رہی۔ ہاں جی، آج کا دن بڑا اہم دن ہے۔ ساری دنیا میں مولا حسین اور شہدائے کربلا کا چیلو منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ طاغوت اور حق کیا ہے۔ حق کی خاطر جان دینے والوں کے لیے اور حق کی خاطر لڑنے والوں کے لیے یہ آج بہت اہم دن ہے۔ انہیں اپنی سلطنت اور اپنے عہدوں سے غرق نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں عوام کا اور اپنے اہل بیت کا اور شریعت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا اور صحابہ کرام کا احترام کرنا چاہیے۔ آج کے دن کی اہمیت کا سب سے بڑا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی دین ہے وہ کربلا کی وجہ سے زندہ ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کربلا کی سرزمین کے جو شہداء ہیں، جو انہوں نے حق کی خاطر راستہ اختیار کیا، اس پہ عمل کرنا چاہیے اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو غیر شرعی ہوں اور غیر اخلاقی ہوں۔ اور ہمیں دنیا میں محبت پیار کا درس ملتا ہے چیلم کے ناطے سے۔ ہم دعا گو ہیں ساری مسلم قوم سے کہ وہ تمام دنیا میں امن قائم کریں۔ وہ ایک ہی راستہ ہے کہ وہ شہدائے کربلا کا چیلم اور 10 محرم کو یاد رکھیں۔ میں علم کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، حضرت غازی عباس علمدار کے موقع پہ جب ان کو شہید کیا گیا تھا تب ان کی یاد میں یہ علم ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ قلم کیے گئے تھے کربلا کے مقام پر، اور آج 40واں ہے۔ آج کربلا کے اندر وہاں پہ اربعین شریف منایا جاتا ہے بڑے دل و جان کے ساتھ، اور بہت سی دنیا کا مقبول ہے یہ مطلب کہ دن، اور لوگ بہت زیادہ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ کس کس کا کرے ماتم، کس کس کا کریں پرسا، شبیر کے سارے ہی لشکر کا یہ چہلم ہے۔ آج چیلم 19 سفر المظفر کے حوالے سے اسلام آباد میں جو برپا ہوا جا رہا ہے، جلوس اپنی براہ پر گامزن ہے، ماتمی دستے پرصداری کر رہے ہیں، شبیہ ذوالجناح، تابوت، علم، تعزیے سارے برآمد ہو چکے ہیں۔ یہ یاد ہے اس بہن کی کہ جو اپنی قید سے رہائی کے بعد چہلم منانے بھائی کے قبر پر کربلا میں پہنچی تھی، اسیرہ شام پاک سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ تو اس کی یاد میں آج کروڑوں لوگ کربلا کے اندر موجود ہیں، شہر شہر جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ اسی بات کی غمازی ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو فرمان رسول بھی تھا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور قرآن کی آیت بھی تھی کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اس کے مصداق رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اے رسول اس امت سے کہہ دو کہ میں تم سے اپنی اولاد، اپنی اہل بیت کی مودت کے سوا کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ تو ہم لوگ یہ سارا سال عزاداریاں، پرصداریاں، چیلم کے جلوس، عاشور کے جلوس نکال کر بتاتے ہیں، ہم یہ بیان دیتے ہیں، ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ مودت کے سفر پر گامزن ہیں۔ ہم اپنے گھروں سے عورتیں، بچے، مائیں، بیٹیاں، بہنیں لے کر جلوسوں میں اسی لیے آتے ہیں کہ ہمارا شمار حسین کے لشکر کے ساتھ ہو سکے۔ مولا عباس کا علم اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کربلا میں جو قافلہ سالاری کا ایک کاروان مولا عباس کے ذمہ سونپا گیا تھا، آج جگہ جگہ عباس کا علم یہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اسی قافلے کے لوگ ہیں، یہ کربلا کے ساتھ شامل حال ہیں۔ یہ کروڑوں عزادار، یہ ماتمی، یہ پرصدار مولا عباس کا علم لے کے جب نکلتے ہیں، حسین مولا کے ذوالجناح کی شبیہ لے کے نکلتے ہیں، تابوتوں کی شبیہ ہوتی ہیں، تو ہم یہ یاد تازہ کراتے ہیں، دنیا کو ہر سال باور کراتے ہیں کہ کربلا میں صرف جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے، اور یہ ظلم رسول خدا کی اولاد کے ساتھ ہوا ہے۔ تو ہم رسول خدا کو پرسہ دینے کے لیے یہ چیزیں لے کے نکلتے ہیں۔ ہم گھروں سے اس گرمی میں، ان حالات میں، جہاں پاکستان کے حالات سیکورٹی کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں انتہائی نامناسب حالات ہیں، یعنی کہ اس کے باوجود میں تو پہلے انتظامیہ سے شکر گزار ہوں گا کہ آج سیکورٹی کے کافی حد تک بہتر انتظامات ہیں پچھلے جلوسوں کی بنسبت۔ تو یہ چیزیں سارا سال ہمارے ساتھ چلتی ہیں۔
हालात जैसे भी हों, सर्दी हो गर्मी हो, मौसमी तगय्युरात आते रहते हैं, लेकिन आज़ादार इमाम हुसैन के लिए 24 घंटे अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं और कमर बस्ता होकर घरों से निकलते हैं। जुलाई में आने वाले सैलाब ने दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ चित्राल सिंगोर के मकाम पर वापटा का बिजली घर भी तबाह कर दिया था, जो अब तक नाकारा पड़ा है। हजारों लोग बिजली से महरूम हैं। तफसीलात गुलामात फारूकी की इस रिपोर्ट में देखिए। चित्राल में जो तबाहकुन सैलाब आया था उसने दूसरे इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के साथ साथ सिंगूर में वापटा का एक पन बिजली घर भी तबाह किया था। मुकामी लोगों का कहना है कि इस बिजली घर की तबाही का बायस वो मलबा और बड़े बड़े पत्थर बने जिसे बुनी सड़क की कुशादगी और तामीर के वक्त ठेकेदार ने दरियाए मस्तूज में डाला था। ये हमारे चित्राल का पावर हाउस है 2 मेगावाट, और उसके साथ नीचे एक दूसरा पावर हाउस है। ये अभी जो आपके सामने जो तालाब नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ ब्लास्टिंग की वजह से जो इसमें मलबा जो है वो दरिया में गिराने के लिए ये सारा ये सब कुछ रुनुमा हो चुका है। ये NHA के कानून और SOP के मुताबिक ये ठेकेदार को वो जितने भी वो मलबा है उसको कहीं बाहर ले जाकर डंप करना चाहिए था, लेकिन इसी दरिया यरखून में या अपर चित्राल के दरिया में पत्थर और मलबा डालने की वजह से यहाँ दरिया डाइवर्ट होके अभी देखिए हमारे जो 2 मेगावाट का एक पावर हाउस वो तो ख़त्म हो। इसने गलती ये किया है कि इसने सारा वो जो बड़े बड़े पत्थर थे जो ये पहाड़ से निकाल रहा था वो सारा इसने दरिया में फेंका। इसलिए एनवायरमेंटल जो महकमा है उसका होना लाजमी होता है जब इस किस्म के काम होते हैं, ताकि ये काम ना, ये कैसे इनको इजाज़त कैसे मिला है कि एक 100 किलोमीटर का सड़क ये बना रहे हैं और वो सारा पत्थर दरिया में डाल रहे हैं। तो दरिया का रुख तो बदली होना ही है। एक चौड़े दरिया को ये लोग पतला कर रहे हैं और एक पतले सड़क को ये चौड़ा कर रहे हैं। वापटा का ये 1 मेगावाट बिजली घर 1975 में उस संगम के करीब दरिया लुट के किनारे बना था जहां दरिया मस्तूज और दरिया लुट को आपस में मिलते हैं। दरिया मस्तूज के पानी ने वो मलबा और बड़े बड़े पत्थर लाकर दरिया लुट के सामने जमा की, जिससे पानी का रास्ता बंद हुआ। बिजली घर के अंदर 10 फुट पानी दाखिल होने से बिजली घर तबाह हुआ। उसके साथ 40 किलोवाट का एक निजी बिजली घर भी दरिया का सतह बुलंद होने की बायस तबाह हुआ, जिसका निचला हिस्सा अभी तक पानी के अंदर है। इस इलाके में चित्राल यूनिवर्सिटी, मुतादद स्कूल्स, कॉलेज, तालिबात की हॉस्टल और दफातर भी मौजूद है। पानी की सतह बुलंद होने से आसपास के मकानात को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। वो पानी ऊपर आके मेरे घर के अंदर तकरीबन 3 फुट तक ऊंचा वो खड़ा हो गया, और घर में कुछ थोड़े बहुत सामान थे वो तो हमने बचा लिया, बाकी जो था वो सैलाब में वो चले गए। 22 जुलाई को ये सैलाब आया था, इसी वजह से हमारा बिजली घर तबाह हुआ। अभी तक यहाँ काम नहीं हुआ है, अभी तक हमारा बिजली का मसला है। बच्चे भाई सबक पढ़ रहे हैं, इनका सबक का मसला है, रात को बिच्छू काटते हैं, तो इसीलिए हमारे हुकूमत से मुतालिबा है कि ताकि इसमें काम शुरू करें। ये वजह ये हुआ कि ये बोनी रोड पे जो ये काम हो रहा है सर जी, उसमें जो पत्थर थे वो सारे उधर नीचे गिराए हैं पानी में, तो वो सैलाब वो सारा पत्थर ले आके मेरे घर के सामने जमा कर दिया। बिजली घर की खराबी की वजह से इन तालीमी इदारों और हॉस्टल में रहने वाले लोगों के अलावा शामिरानदी, सिंजाल, मिरानदी, लुटदी वगैरह देहात के हजारों लोग अभी तक बिजली से महरूम है। इस सिलसिले में इस बिजली घर के रेजिडेंट इंजीनियर मोहम्मद उस्मान से भी रब्ता किया गया, जिनका कहना था कि अभी इसे मुकम्मल तौर पर चलाने में वक्त लगेगा। ये बिजली घर 1 मेगावाट के लिए डिजाइन हुआ था, मगर काफी पुराना होने की वजह से अब ये सिर्फ 600 kV बिजली पैदा करती है। सिंगूर पावर हाउस की खराबी की वजह से यहाँ काम करने वाले तकरीबन 50 मुलाजिमीन की तनख्वाही भी हुकूमत पर बोझ है। चित्राल के समाजी और सियासी तबके फिक्र हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस बिजली घर में नई और जदीद मशीनरी लगाकर 5 मेगावाट तक इसकी पैदावार बढ़ाया जाए, ताकि आवाम को सहूलियत देने के साथ साथ वापडो को भी ज्यादा आमदनी आ सके। 22 जुलाई 2023 को जो तबाहकुन सैलाब आया था, उसकी वजह से सिंगूर में 1 मेगावाट पन बिजली घर वापडा का तबाह हुआ था, जिसकी वजह से सिंगूर के इलाके के लोगों को अभी तक बिजली की फराहमी मुअत्तल है, और दूसरी जानिब वापडो को भी करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। इलाके के लोग मुतालबा करते हैं कि इस बिजली घर को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, ताकि हुकूमत को भी नुकसान का उठाना पड़े और लोगों को भी मुश्किलात में कमी आ सके। की चैनल 51 न्यूज़ चित्राल। टेक्सला इंतजामिया की जानिब से नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से दूर करने के लिए आगाही वॉक का एहतमाम किया गया है।
आगाही वाक में असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला, DSP टेक्सला सर्कल और जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत और हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला और DSP सर्कल तहसील टेक्सला का कहना था कि हमारा अज़्म है कि हमने मुआशरे से मंशियात फरोशों का खात्मा करना है। मंशियात फरोश हमारे आने वाली नस्लों में ये जहर तकसीम कर रहे हैं। घर का अगर एक भी फर्द इस लानत में मुब्तला हो जाए तो पूरा घर तबाह हो जाता है। नशे से इनकार जिंदगी से प्यार है। अगर मुआशरा सेहतमंद होगा तो हमारे आने वाली नस्लों की जिंदगी में भी बेहतरी आएगी। आवाम से अपील है कि मंशियात फरोशों और इसका इस्तेमाल करने वालों की निशानदेही करें ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कहरोड़ पक्का के ओवरसीज पाकिस्तानी गुलाम हुसैन खान ने अपने इलाके के लोगों को रोजगार फराहम करने के लिए रोजगार स्कीम मुतारिफ करा दी है, जहां लोगों को लोडर रिक्शे देकर उन्हें बरसरे रोजगार बनाया जा रहा है। 16 लोगों में लोडर रिक्शों की चाबियां तकसीम की गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कहरोड़ पक्का से नुमाइंदा 51 न्यूज़ मोहम्मद रमजान भट्टी से। आज बिल्कुल जहाँ पर जो है हुकूमती पॉलिसियों की वजह से लोग जो है वो बेरोज़गार हो रहे हैं और इस कमर तोड़ महंगाई में उनका गुजारा करना जो है मुश्किल हो गया है। वहीं पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से जो है लोगों में रोज़गार फराहम करने के लिए जो है एक स्कीम का इजरा किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कहरोड़ के इलाका अड्डा चौकी मस्ती पर, जहाँ पर जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी गुलाम हुसैन खान बलोच की तरफ से वहाँ के इलाका मकीनों के लिए जो बेरोज़गार है उनके लिए एक स्कीम का इजरा किया गया है। उनके भाई जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गुलाम मुर्तज़ा खान बलोच, उनसे जाने के जी बताइएगा ये स्कीम जो आपने लॉन्च की है इससे कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने जा रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि ये मीडिया निशानगी करता है अच्छी चीज़ों की भी बुरी चीज़ों की भी। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ों की हमें निशानगी किया है, जैसे कि रियासत में सैलाब आया था तो इन्होंने निशानगी किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भरपूर सपोर्ट किया है, वहाँ पे जितना भी हो सका है हमने तावन किया है। और उसके बाद ये फिर हमने एम्बुलेंस भी चलाई हुई हैं 4, अल्हम्दुलिल्लाह पानी के फ़िल्टर भी लगाए हुए हैं। और हम कोशिश है कि हमारे पूरे ज़िले लोधरा में महरूमियाँ ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये हमारे छोटे छोटे गाँव हैं, यहाँ पे आजकल आपको पता है इतनी शदीद महंगाई की लहर है कि बंदे खुदकुशी करने पे मजबूर हैं। तो इसी सिलसिले में हमने फिर सोचा कि क्यों ना हम ऐसा रोज़गार सिस्टम किया जाए जिससे ख़ानदान मौसूफ हो सके। तो इसलिए आज हमने 16 रिक्शे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन 16 रिक्शों से तकरीबन 55 लाख का ये प्रोजेक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रोजेक्ट दिया है, इनको 2 सालों में ये किस्त अदा करेंगे। 4.5 लाख रुपए का एक रिक्शा है, आपको पता है आजकल कोई साइकिल नहीं खरीद सकता। तो ये अवाम की भलाई के लिए हमने इंशाल्लाह तैयार किया हुआ है कि भाई गुलाम हुसैन खान बलोच जो कि ओवरसीज़ हैं उनको दिल्ली लगा हुआ है अपने इलाके से। देखिए आजकल के हालात में कोई किसी को नहीं सपोर्ट करता, लेकिन उन्हें अपने इलाके से बहुत मोहब्बत है, प्यार है। और इसके अलावा भी उनके 3-4 प्रोजेक्ट और भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएंगे और इलाके की महरूमियाँ ख़त्म करके लेंगे दम। आज बिल्कुल जिस तरह से आपने इनसे सुना, इनका ये कहना था कि ये जो है अपने इलाके की तमीर और तरक्की के लिए जो है हमेशा कोशिश है। इनका ये भी कहना है कि इन्होंने इलाके की बेहतरी के लिए जो है वहाँ पर जो है फ़िल्टर प्लांट दिया। इसके साथ ही इनका कहना है कि हमने रेस्क्यू को भी 2 एम्बुलेंसेस फराहम की हुई हैं और इलाके के लिए भी 4 एम्बुलेंस जो है हर वक्त मौजूद है। इनका ये कहना है कि ये ज़िला लोधरा में महरूमियों को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सके। जी भर की तरह बवाना में चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर मातमी जुलूस और शिबिया जुलजनाह का सिलसिला जारी है। जुलूस की निगरानी SHO थाना बवाना फरासत अली चट्टा ने की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी मोहम्मद अफजल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मुल्क भर की तरह बवाना में भी चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर मातमी जुलूस और शबिया जुलजना का सिलसिला जारी है। मातमी जुलूस और शबिया जुलजना जो है वो इमाम बारगाह शाह खरासां से जो है वो बरामद हुआ है, जो अपने रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह हाजी रियाज हुसैन पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की निगरानी SHO थाना बवाना फरासत अली चट्टा कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। सर ये बताइएगा आज आपने जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए इस हवाले से। आप देख सकते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है ये 3 लेयर्स में है, और जो फर्स्ट लेयर है वो भी चेक करती है, सेकंड भी और थर्ड भी, और मेटल डिटेक्टर हैं, और जो गलियां हैं वो भी हमने प्लग की हुई हैं, बजरिया खारदार तार और बैरियर। इसके अलावा CCTV कैमरे लगाए गए हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और स्वीपिंग का भी पहले इंतज़ाम किया गया था। और हमने अपनी तमाम तार वसाइल रोए कार लाए हैं ताकि इस दिन को पुरअमन बनाया जा सके। जी बिल्कुल, आपने SHO थाना बवाना की बात सुनी। इनका ये कहना है कि जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को जो है वो खारदार तारे लगाकर बंद किया हुआ है। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए तमाम तर वसाइल जो हैं वो बरूए कार लाए जा रहे हैं। जी मटियारी में चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी मातमी जुलूस दरगाह सही हाशिम शाह से बरामद किया गया। मज़ीद तफसीलात मटियारी से अली फजान की इस रिपोर्ट में देखिए।
यहाँ भर की तरह मटियारी में भी नवासाए रसूल जिगर अली व बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की शहादत का चहलम मटियारी में इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मटियारी में चहलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी मातमी जुलूस दरगाह सखी हाशिम शाह से बरामद किया गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। मातमी जुलूस में मटियारी के नोए खानों ने नोए खानी और मोमनी ने सीना जनी करके करबला के शहीदों को खराजे अकीदत पेश की गई। मटियारी के अज़ादार कहते हैं कि करबला के शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमेशा हक और सच का परचम बुलंद किया था और अपने नाना का दीन बचाया। आज उनका एहसान है हम सब पर और क़यामत तक आज़ादारी बर्पा होती रहेगी। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैज़ान, मटियारी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 51 न्यूज़।